just okay, fine. Okay, I think fine. Okay, is the page clearly visible to you? Yes, sir. Okay. Uh, so I think last class we have discussed about up to that sampling distributions, right? Hmm? What are the that means t distribution, chi-square distribution. These are the things. So today let's discuss about the that means right now we'll use the sampling distribution that we have already discussed in the previous classes. Okay, so there are three things that we'll discuss. Okay, that confidence interval. Okay, so one is the first one is the interval estimation. Interval estimation. Second thing is the point estimation. Okay, then third thing is the hypothesis testing. Okay, so these three things that we'll discuss in this classes. The first thing is point estimation. So हमें point estimation का कब मतलब कि जरूरत पड़ता है? जैसे कि तुम्हें बहुत बार ये एग्जांपल दिया हूँ, जैसे कि कोई पर्टिकुलर क्लास है, वहाँ पे तुम यदि चाहते हो कि कितने स्टूडेंट्स मतलब कि एवरेज मार्क, ठीक है, तो वहाँ पे हम किसको फाइंड आउट करना चाहते हैं कि we want to estimate the average of the that marks that is secured by the particular different students in a particular section. Okay, और ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग पॉइंट एस्टिमेशन कर रहे हैं, वहाँ पे मतलब एग्जैक्ट एक पॉइंट हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. So there are different methods, different procedures by which you can just estimate the points. For example, तुम यदि वेरिएंस एस्टिमेट करना चाहते हो तो वो भी एक पॉइंट ही देगा तुम्हें. तो नेक्स्ट थिंग इज दैट इंटरवल एस्टिमेशन. ओके, इंटरवल एस्टिमेशन मीन्स जैसे कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाइट मतलब कि ऑन एन एवरेज तुम्हारा हाइट 95% प्रोबेबिलिटी में कितने मतलब कि किस रेंज पे रहेगा, देन दैट इज द इंटरवल एस्टिमेशन. ओके, देन पर्टिकुलर इंटरवल जैसे कि हम लोग आई थिंक प्रीवियस क्लासेस में फाइंड आउट किए थे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट some realized values that lies between this to this, that मान लो कि कोई रैंडम वेरिएबल है तुम्हारा z, ठीक है, so that lies between minus z alpha to z alpha. ये वैल्यू कितना है? या z alpha by 2 मान लो, so that is 1 minus alpha. तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लासेस देख चुके हैं, ठीक है. ओके, so that probability that you have to मतलब कि ये जो पार्ट हम लोग देखे थे ना, so ये पार्ट पे हम लोग जनरली ये एस्टिमेट होता है कि एक इंटरवल एस्टिमेट कर रहे हैं जहाँ पे कि तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कुछ मतलब कि हाई रहेगा. तो ये बारे में हम इंटरवल एस्टिमेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है. देन नेक्स्ट थिंग इज द हाइपोथेसिस टेस्टिंग.
this is the most of the important part in this statistic. That's for example, if you want to test whether the क्या बताएं whether the mean equals to for example the mean height, whether the mean height is of a person that is attained the age of 21 or maybe मान लो कि 10 years मान लो, ठीक है, a person that attained 10 years and what can the mean height be 6 feet? Yes or no? Okay, so basically this thing, to prove this thing, that you need data. So what you have to do, you have to collect the height of different person that are around 10 years. Okay, तो मतलब कि तुम्हें चेक करना है कि whether मतलब 10 years का बच्चे का जो एवरेज हाइट है वो 6 फीट है या नहीं. मान लो जस्ट एक रैंडम टेस्टिंग बता रहा हूँ. तो वहां पे हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं है. ठीक है, तो इस सब के बारे में डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लासेस, नेक्स्ट मतलब कंटिन्यूस क्लासेस में हम देखेंगे. ओके, so first we'll discuss the confidence interval. Okay, so what is a confidence interval? Okay, so confidence interval, basically this is an interval for the population parameter. Okay, any parameter that you may have, for example maybe some theta or something, like for the normal distribution you can consider mu, or you may consider sigma square. These are the population parameters. Okay, so an interval estimate of a population parameter theta is an interval of the form theta hat L, that means theta lies between theta hat L, that means the lower bound, and theta hat U, means that is the upper bound. Okay, where so this depends upon the random sample x1 to xn. Okay, so that means ये पार्ट बताता हूँ फिर इसमें जाएंगे. Okay. Okay, so we'll be interested to estimate the confidence interval theta with a confidence level of 1 minus alpha. Okay, so that is probability of theta that lies between these two values, that is equals to 1 minus alpha. What is the meaning? What is the meaning here? So the meaning is the probability that this population parameter theta that lies between this theta hat L, that means the lower bound, to the upper bound, that probability is equals to 1 minus alpha. Okay, and this alpha that lies between, as you know that the probability that lies between 0 to 1. So obviously this alpha also lies between 0 to 1. Okay, the above interval is called the 100 into 1 minus alpha percentile. CI means confidence interval for theta. ओके, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैं बता देता हूँ. ठीक है, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का.
सो कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीनिंग ये होता है कि जस्ट सो कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीनिंग क्या होता है कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है दैट लाइज बिटवीन दिस लोअर लिमिट। ओके, हाँ, और एक चीज है, जब भी हम थीटा हैट लिखते हैं ना, इसका मतलब कि एक मतलब कि इसका एक वैल्यू है। मान लो कि इस टाइप का एक एग्जांपल देता हूँ। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ द मीन दैट लाइज बिटवीन 1.5 टू 2, दैट प्रोबेबिलिटी इज, मान लो कि 1 माइनस 0.05, दैट इज 0.95। इसका मतलब क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर, ठीक है, ये तुम्हारा कहीं रेंज होगा 1.5 से लेके 2 तक। तो ये जो एक्चुअल वैल्यू है म्यू, वो इस बीच में कहीं ना कहीं होगा। हमें नहीं पता है कि कहाँ पे है वो एग्जैक्ट, क्योंकि हम जनरली सैंपल से एस्टिमेट करते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर को। तो टोटल डाटा तो हमारे पास नहीं है ना कि जिससे हम मतलब कि ये चीज चेक कर सके। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी दैट mu that lies between 1.5 to 2, इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली नहीं पता है, बट इसके बीच में रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.95। द मीनिंग इज वी आर 95% sure that the actual value will lie between somewhere around this. Is it clear? कॉन्फिडेंस इंटरवल का मीनिंग क्या है? Please respond. Okay. So confidence interval, the meaning is कि the actual value that lies between these two values, that probability is 0.95. That is a high probability. Fine. So this is the thing. Clear? Confidence interval का meaning. Okay. किसी को डाउट है तो पूछ लो. Any doubt? सर 0.05 कैसे आया? नहीं, मैं जस्ट ऐसे मतलब कि कंसिडर किया हूँ अल्फा इक्वल टू 0.05। ये एक एग्जांपल दिया हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब है नहीं। तो 0.01 लो या एनीथिंग यू कैन टेक। तो वो सब चीजें जो लिख रहा हो ना, अभी कुछ चीजें अभी बाद में समझ में आएगा, अभी टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो मैं अभी जस्ट ये एग्जांपल मानो कि 0.05 अपने मन से एक पॉइंट लिया हूँ, वैल्यू लिया हूँ, जिसको मैं जस्ट तुमको समझाने के लिए कि इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली, ठीक है। और कोई डाउट? ओके, देखो ओके, नेक्स्ट इज हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल पर्टिकुलर चीजों में कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये देखो, ठीक है। देखो यार, तो एस्टिमेटिंग द मीन म्यू ऑफ ए नॉर्मल पॉपुलेशन पे सिग्मा स्क्वायर इज नोन, ठीक है। तो जब सिग्मा स्क्वायर तुम्हें पता होगा तब कैसे करोगे, और सिग्मा स्क्वायर जब अननोन होगा, पता नहीं होगा, देन उसको वहां पे कैसे करोगे। तो ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो वी आर राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग दैट व्हेन द सिग्मा स्क्वायर इज नोन टू यू, ओके। The probability that the theta that lies between mu hat lower bound to mu hat upper bound, that probability is 1 minus alpha. Okay, so let x1 to xn be a random sample taken from the normal population with mu sigma square distribution where sigma square is known.
Okay, from the normal graph we see that this one. So the probability that z that lies between minus z alpha by 2 to z alpha by 2, that is 1 minus alpha. देखो ये तुम्हारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. इफ दिस पॉइंट इज z alpha by 2, that means the probability of z मतलब कि z greater than z alpha by 2, ये टोटल एरिया ये तुम्हारा मिल गया तुम्हें alpha alpha by 2. And as per the symmetric rule, as if it is z minus z alpha by 2, then ये एरिया आ गया तुम्हारा, as this point is minus z alpha by 2, the probability of z less than minus z alpha by 2, this one is alpha by 2. Fine. So total area that lies between this to this, इसका मतलब कि ये जो रेड में शेडेड रीजन है, देखो यहाँ पे ये रीजन है, तो ये तो अल्फा बाय 2 निकल गया, यहाँ पे भी अल्फा बाय 2 निकल गया. टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1. So the probability that this lies between in this region, that probability is equals to 1 minus alpha. Yes, fine. ये पार्ट समझ में आ गया? Okay. A simple just a deduction है. Okay. So first z equals to root n into x power minus mu upon sigma. ये तुम्हें पता है, that follows a standard normal distribution. Root n into x bar minus mu upon sigma, that follows the standard normal distribution. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किए थे आई थिंक, ठीक है. So from the equation 2 you can see that in place of this z just replace this by ये वैल्यू, ये जो है इसको हम रिप्लेस किया. So and then यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन करेंगे, अल्फा सिग्मा में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, रूट n से डिवाइड करेंगे. देन थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करने के बाद यहाँ पे हमें मिला that this mu is the population parameter. Okay, this population parameter that lies between minus z alpha by 2 to z alpha by 2, that probability is 1 minus alpha. Okay, that probability is 1 minus alpha. Then ठीक है, यहाँ से हम एक एक करके डिडक्शन लेके आए. सो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है दैट इज थीटा हैट एल, दैट इज एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय रूट n, ठीक है. एंड जो अपर लिमिट है दैट इज ओके. सो द लोअर लिमिट ये तुम्हारा एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा बाय रूट n एंड एक्स बार प्लस जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा बाय रूट n, ये हो गया तुम्हारा अपर लिमिट. ये अपर लिमिट, लोअर लिमिट. लोअर लिमिट नहीं मतलब कि लोअर पॉइंट है जो अपर है. सो तो ऐसे करके हम इंटरवल एस्टिमेट कर रहे हैं. तो इसका मतलब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द म्यू दैट लाइज बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, क्योंकि हमें पता है कि सिग्मा नोन है, यहाँ पे दिया गया है सिग्मा स्क्वायर इज नोन, तो सिग्मा नोन है. जेड अल्फा बाय 2 पॉइंट तुम्हें अल्फा यदि पता होगा तो उसके हिसाब से तुम फाइंड आउट कर सकते हो. और रूट n क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो वो तुम कुछ भी मतलब अपने हिसाब से कंसीडर कर सकते हो. एक्स बार इज जो वैल्यू, ठीक है, मतलब एक्स बार तो मीन, वो तो सैंपल से तुम आराम फाइंड आउट कर सकते हो. और रूट n कितना नंबर ऑफ सैंपल है वो भी तुम आराम से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है. सो ऑल वैल्यूज आर known to you. Now you can find out these 2 points. That means the probability that this mu that lies between these 2 points, that probability is 1 minus alpha. ठीक है. ओके, ठीक है.
देन एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा आराम से. The average zinc concentration recovered from a sample of measurement taken in 36 different locations. देखो तो यहाँ पे क्या दिया है 36 different locations in a river found to be 2.6 gram. So 36 different locations है. So इसका मतलब कि n क्या है तुम्हारा यहाँ पे 36. ठीक है. Then yeah, the average zinc concentration. तो ये जो एवरेज वैल्यू है दैट वैल्यू इज 2.6 ग्राम पर मिलीलीटर. ठीक है. सो एक्स बार इज इक्वल्स टू 2.6 ग्राम पर ml. ठीक है. Then you have to find out a 95% confidence interval. 95% means 100 into 1 minus alpha percentile दिया है. देखो यहाँ पे 100 into 1 minus alpha percentile. So 100 into 1 minus alpha is your 95%. Okay. 1 minus alpha, that just 1 minute. Okay. So n equals to 36 because 36 different locations are there, and the average value that is found out to be 2.6 gram per ml. Okay, average zinc concentration. Okay, then 95% confidence interval. 95 means 100 into 1 minus alpha percentile generally हम find out करते हैं confidence interval for mu. तो 100 into that means 1 minus alpha equals to 95. So alpha equals to 0.05. ठीक है. So alpha equals to 0.05 और एक alpha है तो 99%. तो 1 minus alpha equals to 99, alpha equals to 0.1. Okay, इस तरीके से. Okay, fine. Then so what you have to do right now, you have to find out the confidence interval if the sigma is known to you as 0.3. ठीक है. फाइंड आउट कर सकते हो. आई थिंक सिंपल फॉर्मूला में तुम्हें वैल्यूज पुट करना है. सो द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स बार माइनस जेड अल्फा बाय 2 इनटू सिग्मा बाय रूट n. ओके, दिस वैल्यू. सो तुम्हें अल्फा बाय 2 मींस अल्फा इक्वल्स टू कितना है. एक पहले 0.5 के लिए सॉल्व करते हैं. ठीक है. सो 0.05 by 2 that is 0.0. So Z just find out Z 0.025 and sigma is known to be 0.3. So the probability of x bar minus x bar is x bar value 2.6. Okay, x bar is 2.6 minus Z alpha by 2. Z alpha by 2 is Z 0.025 into 0.3 divided by root over of 36, and that lies between this mu, that is 2.6 plus Z 0.025 into 0.3 by root over 36. That probability is 95%. Okay, तो आई थिंक तुम्हारे पास हर चीज का वैल्यू है एक्सेप्ट 0.025 जो कि तुम्हें टेबल से देखना पड़ेगा. टेबल से देख के बताओ.
ओके, सो कोई बता सकता है जेड 0.025 का वैल्यू क्या है? और पर डाउट है? अरे किसी के पास तो टेबल होगा, हाँ? या किसी के पास टेबल नहीं है? चेक करो और कोई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड 0.025? Hmm, 0.025 1.96 है, चेक करो तो। सचिन, am I audible clearly or not? ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ 1.96. So the probability value, so that is z 0.025, that is 1.96. ठीक है, 1.96. So right now what you have to do, you have to put the value there. So what you will get, okay, so right now just see कि यहाँ पे देखो 2.6 minus z 0.025, तो in place of this just I will put 1.96. Okay, z 0.025 1.96, 0.3 by root 36, that is 6. Okay, okay, so 6, sorry. Okay, so 1.96 into 0.3 divided by 6. So और z 0.025 1.9. Okay, इसको लिखते हैं, z 0.025, that is 1.96. ओके, ठीक है, सो 1.96 into 0.3 divided by 6. So then x bar कितना है तुम्हारा यहाँ पे? x bar का वैल्यू कितना था? 2.6. ठीक है, so 2.6 minus this one and 2.6 plus 1.96 into 0.3 divided by 6. So this is the confidence interval. So the probability of the actual parameter value that lies between this to this interval, that probability is
0.95. Okay, fine. Okay, समझ में आ रहा है या नहीं? अरे कुछ तो रेस्पॉन्स दो एटलीस्ट. ओके ओके फाइन. ओके सो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन है जस्ट इज सिमिलर टू दिस, तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ. और एक चीज है, कभी तुम्हें दिया जाएगा कि जो एरर वैल्यू है, एक्चुअली इसको जो है ना, ये जो जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा बाय रूट एन, तो दैट इज एक्चुअली द एरर क्वांटिटी यू कैन से. ओके, क्योंकि उतना एरर तो हम मतलब कि इग्नोर करते हैं कि एक्चुअल वैल्यू उतना अंदर रहेगा. तो 2.6 क्या है, मीन है, मतलब सॉरी मतलब कि हाँ सैंपल मीन है. सो सैंपल मीन से इतना डिफरेंस है प्लस और माइनस दिस, इसका मतलब कि एक्स बार तुम्हारा यदि यहाँ पे कहीं पे है एक्स बार, सो एक्स बार माइनस दिस, एक्स बार प्लस दिस, तो इसके अंदर में कहीं ना कहीं तुम्हारा एक्चुअल वैल्यू ये हो सकता है, ये हो सकता है, कहीं ना कहीं रहेगा. एंड दैट प्रोबेबिलिटी इज 0.95. ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज द एरर टर्म. योर एरर टर्म, वो उतना एरर मतलब कि एग्जैक्ट नहीं, उतना एरर है हमारे पास, क्योंकि सैंपल से हम एग्जैक्ट पॉपुलेशन का पैरामीटर इजीली फाइंड आउट करना मुश्किल है, इसलिए तो एग्जैक्टली फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है. सो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब कि ये कुछ एरर वैल्यू दे देते हैं वहां पे, ये यहाँ ना कहीं इस अंतर में रहेगा. ओके, then what you have to do, next is, so यदि तुम्हें ये दिया रहेगा कि जस्ट रिवर्स थिंग कि तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा n where the error will not exceed this type of thing. ठीक है, ओके, तो इस ये है थ्योरम तुम्हारा कि if x bar is used as an estimate of mu, we can be 100 into 1 minus alpha % confident that the error will not exceed this one, z alpha by 2 sigma by root n, sigma by root n. So the probability of x bar, that mod of x bar minus mu, that lies, x bar minus mu that lies between this to this interval. So if you take the modulus value, so यहाँ पे modulus, यहाँ पे modulus, यहाँ पे modulus, तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू का यदि मॉडुलस लेंगे, या मिनिमम कितना वैल्यू होगा यहाँ पे, 0 से लेके जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा बाय रूट एन. ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस अल्फा. सो दिस ई एरर टर्म दैट इज जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा बाय रूट एन इज कॉल्ड द एरर इन एस्टिमेटिंग द म्यू. ओके, मतलब कि हम जब एस्टिमेट करना चाहते थे तब इतना एरर हमारा अकर हुआ है यहाँ पे. फाइन. सो उल्टा दिया जा सकता है कि यदि तुम्हें एरर दिया गया है तो वहां से एन फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा सकता है, और यदि तुम्हें एन वगैरह दिया है जैसे कि अभी प्रीवियस क्वेश्चन किए, तो तुम्हें बाकी एस्टिमेट करने के लिए, तो कोई भी वैल्यू तुम्हें एस्टिमेट करने के लिए से दिया जा सकता है. और ये यदि थोड़ा बहुत ज्यादा टफ नहीं है, इजीली तुम लोग इसको, यदि पहले पार्ट यदि समझ में आया है, जेड अल्फा बाय 2 वगैरह वगैरह जो पहले पढ़ा है, देन ये टॉपिक ज्यादा टफ नहीं लगेगा. रिवाइज किए हो या नहीं? ओके, यहाँ तक जो पढ़ाया हूँ, किसी को कुछ डाउट है? यहाँ तक जो भी डिस्कशन हुआ है, कोई डाउट है या नहीं? किसी को डाउट नहीं है? Okay, fine. So let us proceed to these examples. So right now, how large the sample is required
if we want to be 95% confident that our estimate of mu in the above example is off by less than 0.05. ओके, सो इसका मतलब कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो उसका जो that must be less than 0.05. So sigma equals to 0.3. Okay, and E equals to 0.05. Then N equals to this one. So that is 139. Therefore, we can be 95% confident that the random sample of size 139 will provide an estimate x bar that differs from the mu by less than 0.05. Okay. So ये कैसे डिसाइड होता है? हमारे पास जो एरर टर्म था क्या था? That is z alpha by 2 into sigma by root n. So that is the error term. Okay. So error term हमारे पास यदि error term पता है और हमें रेस्ट करना चाहते हैं ये वाला पार्ट को, then what we have to do? मतलब कि यहाँ पे ये वाला पार्ट है, so रूट टेन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, सॉरी रूट टेन से मल्टीप्लाई करो, हाँ मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा. So तो यहाँ से हम लोग जनरली फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, सो ये हो गया ई जो है ना, ये एरर टर्म है. सो ई इक्वल्स टू जेड अल्फा बाय 2 इंटू सिग्मा बाय रूट एन. सो यहाँ से तुम्हें मिला रूट एन तो मल्टीप्लाई, हाँ ठीक है, इसको इधर ले आता है. रूट एन इक्वल्स टू जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा बाय ई. ओके, तो ये जो वैल्यू है जेड अल्फा बाय 2 सिग्मा एंड 2. तो वही चीज है, जेड अल्फा जेड 0.025 by 2 0.025 and this is sigma 0.3 sigma. Okay, then ये एरर इससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, so the error term that is equals to 0.05. Okay, so then we build a 95% confidence interval if the sample size is greater than 139. ठीक है, सो सिमिलरली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, सॉल्व कर देना. कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? कोई भी डाउट है तो पूछ लो किसी को. ओके, फाइन. Okay, then next part. और एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेना उसको. ओके, दिस इज योर होमवर्क. हर कोई स्क्रीनशॉट ले लो ये क्वेश्चन का, खुद से थोड़ा कोशिश करना एटलीस्ट. ओके.
नेक्स्ट, ये सब एक्चुअली अभी जो भी मैं पढ़ाऊंगा ना वो सब सिमिलर काइंड ऑफ है, थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होगा, देन एवरीथिंग इज सेम। सो सो किसी को यदि कुछ डाउट होगा देन पूछ लेना साइड बाय। एस्टिमेटिंग द मीन ऑफ ए नॉर्मल, सो अभी जस्ट पढ़े हम लोग कि एस्टिमेटिंग द मीन व्हेन द नॉर्मल पॉपुलेशन द सिग्मा स्क्वायर इज नोन टू यू, बट राइट नाउ व्हेन द सिग्मा स्क्वायर इज अननोन टू यू, देन वहां पे तो जैसे कि सिग्मा था तो यदि पता होगा हमें तो हम डायरेक्टली वहां पे वैल्यूज सिग्मा का पुट कर देंगे, बट है क्या कि यहाँ पे अभी मतलब कि सिग्मा का वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो यदि पता नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, अप्लाइंग द सेम आर्गुमेंट एज द अबव। सो यहाँ पे हम लोग टी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे, वहां पे यूज किए थे जेड डिस्ट्रीब्यूशन का, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और यहाँ पे यूज करेंगे टी डिस्ट्रीब्यूशन का। टी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों, क्योंकि हम लोग को एस मतलब कि टी इक्वल्स टू रूटेड इनटू एक्स स्क्वायर माइनस म्यू, ओके, divided by s, that follows a t distribution alpha with n minus 1, okay. Then probability of minus t alpha by 2 to root n x bar minus mu upon s and t alpha by 2, so t distribution भी just normal distribution का type है ये, ठीक है। so ये t alpha by 2 पॉइंट, ये minus t alpha by 2, okay. सो दोनों सिमेट्रिक है ना, तो इसलिए हम टी अल्फा बाय 2 माइनस टी अल्फा बाय 2 लिख सकते हैं, ओके। सो द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू रूट एन इनटू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस, ओके। सो यहाँ पे माइनस टी अल्फा प्लस टी अल्फा बाय 2, सो जस्ट सॉल्व इट, ओके। सो इसको जब सॉल्व करके क्या हमें मिलेगा कि the mean, so the 100 into 1 minus alpha percentile of the CS is given by this one, ठीक है। देख लो किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, डाउट नहीं पूछोगे तो फिर मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ते जाऊंगा। ओके फाइन।
Sir, you are not audible. Hello. Yeah, right now. Yes, sir. Now it's audible. Yes, sir. Okay, okay, fine. So, so here the sigma is not known. So when the sigma is not known, what distribution that you have to use? तो तुम एक चार्ट बना लेगा, ठीक है, छोटा सा, जहाँ पे एक सिग्मा नोन होगा तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस इंटरवल क्या होगा, जहाँ पे सिग्मा नोन होगा तो कौन सा होगा, ठीक है. तो when sigma is not known, so you have to use the this distribution. Okay, so x bar equals to this one, then s equals to 2.83, t 0.005 is 2.447 with the v equals to n minus 1 is 6 degrees of freedom. ओके, सो ऐसे करके तुम फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, x बार माइनस दिस z अल्फा बाय 2 और z प्रोबेबिलिटी, ठीक है, सॉरी, हाँ. ओके, सो तो हम लोग कॉन्फ्रेंस इंटरवल ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? Sir, the screen is not visible. हाँ, स्क्रीन एक्चुअली कुछ इशू है अभी थोड़ा, लैपटॉप में तो मैं मोबाइल से ज्वाइन किया हूँ अभी, ठीक है, तो इसलिए वो स्क्रीन विजिबल नहीं होगा थोड़ा टाइम. यदि किसी को यहाँ तक इस कोई भी पार्ट में यदि डाउट है तो मैं मोबाइल पे कन्वे करने की कोशिश करूंगा, ठीक है. ये पार्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो इंटरवल एस्टिमेशन वगैरह? क्या तो लास्ट एग्जांपल का एस और एक्स डैश कैसे निकाले? एक्स और एक्स बार डैश है और ना, एस. हाँ, एक्स बार. हाँ, एक्स बार तो वहां पे गिवन होगा. देखो बाकी चीजें ना, सब चीज गिवन होगा, जो सिर्फ इंटरवल एस्टिमेशन के लिए. तो वहां पे तुम देखो क्या क्या वैल्यूज है, देखो तो जो मैं बताया था अभी. 1 मिनट. तुम्हारे पास है या नहीं है? देखो वहां पे दिया है तुम्हारा एक्स बार ऑलरेडी गिवन है. एक्स बार तुम्हारे पास फाइंड आउट करने के लिए तुम्हारे पास डाटा पॉइंट्स है, कंटेंट्स सेवरल कंटेनर्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो डाटा 9.8, 10.2, 10.4, 9.8, 10, 10.2 और 9.6, ये जो वैल्यूज है वहां पे तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका मीन फाइंड आउट कर लो. पहले मीन तो फाइंड आउट कर सकते हो ना, सैंपल मीन, समेशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय एन. हाँ, यस और नो? यस सर, यस सर. हाँ, तो वो फाइंड आउट कर लिए. मीन फाइंड आउट करने के लिए एस मतलब क्या है? एस इज द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन. पहले सैंपल वेरिएंस फाइंड आउट करो. कैसे? एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय n माइनस 1. तो इससे तुम एस फाइंड आउट कर सकते हो. यस और नो?
जो तुम्हारा एसएस का सैंपल वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था, समेशन 1/n-1 समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो वहां से तुम्हारा एस का निकला तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो एस मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। एस मिल गया, देन बी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहाँ से आएगा, वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 डाटा पॉइंट है, तो 7 डाटा पॉइंट से मीन्स 7 - 1, सो देयर आर 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। देन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो 100 × 1 - अल्फा, मतलब कि 1 - अल्फा का अल्फा वैल्यू क्या दिया है 95%, तो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए मुझे 0.05 लेना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसे करके फाइंड आउट कर लो, सो म्यू लाइज बिटवीन दिस टू दिस। क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं तो ये पेज आज जो लिखा हो ना मैं भेज दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये मीन के लिए हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में वेरिएंस के लिए शो करूंगा। ये हो गया इंटरवल एस्टिमेशन हो जाएगा। देन हम लोग कैसे एक एक पॉइंट का कैसे फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट एस्टिमेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट एमएलई वगैरह ये सब वगैरह। क्लियर या कोई डाउट है किसी को? ओके, ठीक है। 1 और 2 मिनट से जिसको यदि कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना।